So order place part koribo karone first we have to make order table. Okay, so it amar order place hobo lagibo. So these are the cart items. So from these cart items we want to place an order. ঠিক আছে? So whenever we want to place an order we have to accept the details of the user like address details, shipping details, okay, billing details, etc. Then we have to place order. So এই order কি কৰিব লাগিব? We have to store the products. কি মানে কোনটো products order কৰিছে সেইবোৰ store কৰিব লাগিব. Okay, so I will create one new order table. ঠিক আছে? So basically we will create a new table, say orders. Okay, so orders table ID থাকিব. ID will be auto incrementing. So this ID column I will make it int itself, integer থাকিব as it is. Then we will have auto increment this one AI, just check mark this. Okay, auto increment. Then order amar kiki thakibo, what will have address. Simply I'm keeping address. We can also store city, state, country like this separately, but just address column and simple. We are keeping simple. So I'll use varchar variable characters. So here 255 length, so we can specify any length, 300, 500 like that. So this is better than text because this consumes less memory. Okay, then default value, if you want to allow null, then you can checkbox this null. Okay, so that even if user address fill up nokore, still there won't be any errors. Okay, so this is the address column. So after address we can store the customer name. Okay, customer name, we can say customer full name. Then full name will be varchar 255 characters. Default you can clip null here also. Yate null dile mane ki hobo, here it will automatically check. Okay, if you set default value as null, yate automatic ahi jabo. Then we can store the grand total. So basically total price kiman hobo after adding up all the amount here. So we can store the grand total in order table. Okay, so this will be integer itself. Then we don't want any null here, so yate kiba eta value thakibo lagibo. So with these 4 columns aru kiba ase niki, ID, address, customer, we can say payment method, cash ne this online. Okay, so we can also store this kind of various information are possible we can store. But besides that, address, customer full name and grand total, these 4 are sufficient for now. So we can create this table by clicking save button. So this is the orders table. Okay, now click save. Our order date and time also we need to store, so that is also important. So in order table we need to store the order date. Okay, order date and time. So basically we will create one new column again. So we came here to this structure. So in this structure we will edit. So this is our table. So after grand total I will click go to add one column. So we will say order date. Okay, so we will store the order date and the data type will be date. So data type select date. Default you can keep null, but for now we don't want to keep null. हम लोग को मतलब date store करना पड़ेगा. So we have to store date here. So save this. So one more new column was added. So the total columns are 5 of them: ID, address, customer full name, grand total and order date. Okay, so when we place order, the able details আমি store কৰি থম মানে order ত. ঠিক আছে? Okay, so any confusion in this order table you can ask. Okay, so now let us create place order button. Just one second. So we can create place order button at the top or at the bottom, wherever you like. So we will keep at the bottom. So let us go back to VS Code. Let us go to cart page. So in this cart page we can create a button at the bottom. Button class equals to, since we are using bootstrap, btn hyphen success maybe place order slash button. Okay, so this will create a button here like this, place order. We want this to be smaller, it is too large, and we want its width to be less, maybe around 50%. So we can say w hyphen 50. This will make the width 50%.
like this, place order button. So you can put your own style. Okay, so now this will be a form basically. तो क्या होगा, when we click this place order button, it will run a PHP file which will help us to insert the record in this order table. Okay, so a new order entry will be created when we click the place order button. So let us do it. So this will be a form. Okay, so this will be a form like this, slash form. Form will have an action. Okay, so action will basically be the file, okay, which will run after clicking this button, after submitting this form. So we can say place order.php. Okay, so enekwa naam dibo lage, which will basically represent what we are trying to do. Then method equals to post method. So we'll just create this form and we will have no hidden input and etc sort of. So हम लोग को इधर कुछ ऐसा extra नहीं चाहिए, ठीक है. So now we'll create the file placeorder.php. Okay. So in this file, the first step is to identify what are the products that we need to add, right? So right now we'll just calculate the grand total and insert it, but in future we will also need to store that which products were created, okay, in our order. मतलब हम लोग के order में कौन कौन सा product add किया गया था. So that information we are not storing right now. For now we'll just store ID, address, customer, full name, grand total like this. But before this, as you know, we need a form here, huh? A form will be important, ठीक है. So place order के ऊपर हम लोग को form लगेगा where we will have address, customer, full name, grand total. No, grand total तो automatic calculate होगा, but address, customer name and order date suppose. तो हम लोग को एक form चाहिए where we can fill up address and customer full name, right? We can also store mobile number of the customer. Okay, so let me also add one more column for mobile number. mobile mobile. So I'll also make it variable characters 255 length. Okay, so let us create the design. So in this design what I want to do, right side में मैं एक box बनाना चाहता हूँ, हाँ. Instead of creating a separate page, on the right side I'll create a small box where I will have these three form inputs: address, customer name and mobile. Okay, like that. Then the place order button will be present there. So this one should be inside the grid system. तो ये जो पार्ट है हम लोग का, ये इधर से लेके कार्ड डिटेल्स जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर div class equals to row. So I want it to be column around 8, call md8. Okay, so the entire thing will be inside a div element like this. So this one, and this is the end of row. Okay, so now how does it look? 1 minute. Okay, there is a mistake somewhere. Quantity, okay, below this we have to do. Yeah, so basically on the left side you can see card details. So on the right side we have to create this form. So here simply I will create one more div with column md4 because I already created column md8, ठीक है. तो इधर हम लोग का क्या आएगा, column md4. So this is the right part. So on the right side you can see there is a place order button. तो इधर हम लोग form input भी बनाएंगे. But before that, let us get rid of this outer border. It's not looking good because it seems like there are double border now. One for card item, one for this external item. Okay. तो हम लोग बाहर का जो ये है ना card class, इसको हटा देंगे. So it looks like this now. So a little bit less, like it was too much. So now अभी इधर हम लोग form बनाएंगे. So just here in this form tag we can create now input elements. No battery, please charge. 1 minute. Okay. So input type equals to text. Okay, placeholder not required. We can create div element. Inside this div element we'll create one label.
label, then we can say full name. Okay, then here we have to give name attribute so that जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे वो वैल्यू so that सर्वर में हम लोग रीड कर पाए, right? We can say full name like this. Let us see how it looks. It looks like this, pretty simple. So we can add class equals to form control. Okay, so full name आ गया. So in this div element we can add my3 or mb3 just bottom side. At the top I don't want to shift the layout, नहीं तो ऊपर देने से हिल जाएगा layout. So here we'll have full name. So let us copy paste 3 more times. Full name, address. Okay, then at last we have mobile number. So मोबाइल नंबर मैं बीच में डाल देता हूँ बिकॉज एड्रेस के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहता हूँ. हाँ, बिकॉज एड्रेस कैन बी लॉन्ग. ओके, सो आई विल क्रिएट टेक्स्ट एरिया स्लैश टेक्स्ट एरिया. सो इन केस ऑफ टेक्स्ट एरिया रिमेंबर देयर इज अ क्लोजिंग टैग. ओके, फिर बाकी बूटस्ट्रैप का तो तुम लोग क्लास फॉर्म कंट्रोल लगा सकते हो, फॉर्म हाइफन कंट्रोल. ठीक है, so full name, mobile number, address like this. So mobile number you can make input type number if you want to restrict user from typing any alphabets, characters. Okay, so full name, address and this. So these fields we can make it required. You can add the boolean attribute called required. So when you add this required boolean attribute, तो बिना टाइप किए सबमिट नहीं कर पाएगा. It will give an error. Okay, it will give an error. So when I click place order, you can see this error in the HTML part itself without submitting. So they have to fill up everything, only then they can submit. Huh? So this is the order details. So now ये सब full name हो गया, name attribute इसका होगा mobile, और address में क्या होगा, इसमें भी name देना पड़ेगा address. So we gave 3 name attributes like this. Now अभी हम लोग क्या करेंगे, place order PHP में जाएंगे because form submit होने से उधर चला जाएगा control. So here let us accept these 3 values, right? Full name, mobile and address. So dollar full name equals to dollar underscore post full name. So these are the values that we receive in our post method. ठीक है, so हम लोग का क्या क्या है, full name, mobile, then address. So these are the 3 input elements that we will receive for this address, customer, full name, mobile. But grand total or order date, so these 2 values customer will not provide. Okay, so these 2 values, grand total and this one, order date, we have to calculate and find out. Okay, so order date, कौन सा date में order हुआ था, you have to find out from here. Okay, and also you have to automatically calculate the grand total. So this other 3 information we got, but the information for grand total and order date we have to calculate. So first of all let us calculate grand total. So to calculate grand total हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कार्ट टेबल से information fetch करना पड़ेगा. तो कार्ट टेबल में जो जो प्रोडक्ट है उसका information fetch करना पड़ेगा और उसका प्राइस को हम लोग को add up करना पड़ेगा. Okay, we have to add up their price. So this is one way you can do. So we can run while loop, we can select star from cart, then inside each item we can fetch the product. So we will do this to calculate the grand total. And also we have to multiply by quantity. अगर किसी में quantity 2 या 3 है तो जो भी price है उससे multiply होगा. ठीक है, so yeah, if I have 200 rupees product, quantity 3, so 200 multiplied by 3 equals to 600 like that. ऐसा total price calculate करना पड़ेगा. Then order date को कैसे मिलता है मैं बता दूंगा, how you can get. ठीक है, so first we have to run SQL connection. So $con equals to mysql underscore connect. Okay, then connection local host, basically the database host you have to give, then username, password, then the name of the database Ecommerce. Okay, so this is our connection. So now we will run MySQL query so that we can fetch all the information from the cart table. So in MySQL query पहला argument हमेशा हम लोग को connection variable देना पड़ता है. Second argument is select star from the table name which is cart. Okay, select star from cart like this. तो कार्ट में जितना भी डेटा होगा हम लोग सारा फेच करके रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर देंगे लाइक दिस. ओके, सो इन दिस रिजल्ट वेरिएबल विल स्टोर all the result that is coming from the cart. Now since this is a record, okay, list of records, so we have to run mysql fetch to get the data in associative array format. So while
like this, dollar row equals to mysqli underscore fetch soc. ओके, तो इधर हम लोग को डॉलर रिजल्ट देना पड़ेगा. सो वन बाय वन हम लोग को इन्फॉर्म वैल्यूज इधर मिल जाएगा व्हाइल लूप में. ठीक है. सो नाउ अभी अभी के लिए हम लोग को स्टिल प्रोडक्ट का प्राइस नहीं मिला है. यस, वी गॉट द क्वांटिटी, dollar quantity equals to dollar row qty. So you can use like this, right? So as you know, dollar row contains the information for one particular row of this cart table. So to get the quantity, we do like this, dollar row quantity. So I'm storing this in a variable called quantity for easier access. Okay, just 1 minute. ओके, सो क्वांटिटी हम लोग इधर फेच कर रहे हैं. नाउ वी वांट टू गेट द प्राइस, बट वी हैव ओनली इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट आईडी. हम लोग का प्राइस तो नहीं है, हम लोग का प्रोडक्ट आईडी बोल के है. प्रोडक्ट आईडी मतलब पी आई डी भी मैं स्टोर कर सकता हूँ. सो डॉलर रो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आई डी. ओके, सो बेसिकली पी आई डी वेरिएबल में मैंने स्टोर करके रख दिया. तो अभी हम लोग को एक्चुअल प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन जो प्राइस है उसको प्रोडक्ट टेबल से लाना पड़ेगा. ओके, which means we have to again now write a query to fetch that particular product with the given ID from this cart, because only in this table we have the price column. ठीक है, तो हम लोग को मतलब उस रिलेशन को यूज़ करना पड़ेगा. एज यू नो, इन कार्ट टेबल वी स्टोर द प्रोडक्ट आईडी, सो इट इज़ रिलेटेड विद दिस प्रोडक्ट टेबल यूजिंग द प्रोडक्ट आईडी कॉलम. हाँ, तो प्रोडक्ट टेबल में हम लोग का आईडी बोल के जो है ना उस कॉलम को समझा रहा है फ्रॉम दिस कार्ट टेबल. ओके, so what we will do, we will try to fetch the information using this id column. So our query will be like this, mysqli underscore query. So select star from products, okay, products table, where id, जिसका id column equals to this one pid. So कार्ट में जो प्रोडक्ट id स्टोर था ना, तो उसके साथ id जो प्रोडक्ट मैच होगा ना उसका प्रोडक्ट का डिटेल को हम लोग को चाहिए. So you can say product result or something. So I am giving a different name so that there is no clash, okay, or any issue. So now MySQL fetch SOC इधर भी use करेंगे. But since we have only one particular result coming from here, as you know ID is unique, so we don't want to call in while loop. Okay, simply एक बार call करने से हम लोग को product का details मिल जाएगा. So product details variable में store कर सकते हो like this. So you have fetch the product. Now we have access to price. अभी ये जो है ना डिटेल्स एसोसिएटिव एरे, तो उससे हम लोग प्राइस को रीड कर सकते हैं लाइक दिस, बिकॉज एज यू नो दिस स्टोर्स ए पार्टिकुलर कॉलम, इट स्टोर्स वन सिंगल रो ऑफ दिस टेबल, एंड इन दिस टेबल वी हैव अ कॉलम कॉल प्राइस. सो वी कैन एक्सेस लाइक दिस. जो भी प्रोडक्ट आईडी था उसका प्राइस को हम लोग को मिल जाएगा. नाउ हम लोग को टोटल प्राइस निकालना है. सो हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे बाहर लाइक दिस, डॉलर टोटल इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, बिगिनिंग में 0, देन व्हाइल लूप में इसको हम लोग ऐड करते जाएंगे. डॉलर टोटल इक्वल्स टू डॉलर टोटल प्लस दिस प्राइस. ठीक है, बेसिकली हम लोग रिपीटेडली व्हाइल लूप में जितना भी आइटम होगा कार्ट का, एज यू नो दिस व्हाइल लूप विल रन एज मेनी टाइम्स दैट वी हैव दैट नंबर ऑफ रोज इन दिस कार्ट टेबल. अगर कार्ट टेबल में 2 रो है तो 2 बार रन होगा, अगर 3 रोज है देन इट विल रन 3 टाइम्स लाइक दैट. सो ऐसा टोटल हम लोग का ऐड होके जाएगा. बेसिकली इसको मैं ग्रैंड टोटल भी रिनेम कर सकता हूँ like this. ठीक है, so we got the grand total. now grand total calculation हो गया. any question here? grand total calculation কিবা question আছে যদি সুধিব পাৰিবা. grand total calculation এইটো for order place. so full name mobile address হৈ গ'ল, তাৰপিছত grand total calculation. at last we have something called date. okay, so we have date here. तो order table में जो है हम लोग का date insert करना पड़ेगा. okay, address, full name, mobile, grand total and order date. तो order date का data type है date. now data type जो है date उसका एक format रहता है. you cannot insert date in any random order. you have to insert in this format, YYYY MMDD, this format, this international standard format. okay, ISO format भी बोलते हैं हम लोग को इसको. so 4 digit year, 2 digit month, 2 digit date.
Okay, so this we can easily achieve using a function in PHP, new function called date function. Okay, so date function से हम लोग इधर जब हम लोग कॉल करेंगे डेट फंक्शन, वी हैव टू स्पेसिफाई कौन सा फॉर्मेट चाहिए, हाँ, बिटवीन अ स्ट्रिंग ना। इधर हम लोग को कैपिटल वाई लिखना पड़ता है इफ़ यू वांट दिस फॉर्मेट। फर्स्ट दिस कैपिटल वाई विल रिप्रेजेंट दिस 4 डिजिट ईयर, हाँ, देन स्मॉल एम, देन डी। तो इधर बीच में फॉर्मेट लिखना पड़ता है। सपोज यू जस्ट वन मंथ एंड डेट, यू विल राइट एम हाइफन डी और एम स्लैश डी, ऐसा भी लिख सकते हो, तुम लोग का इच्छा। But we want hyphens between each of this, right? So that's why we are giving like this. So this is a date function in PHP which gives you the current date. अभी जो current date है ना, कौन सा टाइम में ये रन होगा कोड, उस टाइम का डेट को देगा. Okay, so we will explore this later properly, but using this date function you can create this format like this. You have to pass an argument capital Y, small m and d separated by hyphens, then you'll get these hyphens. You can give any symbol, you can also give colon, your wish. So here we want hyphens because SQL में हम लोग को ये format ही accept होता है, हाँ. Okay, so now what we will do, so we will now write a query to insert our order. So simply mysql underscore query $con first argument. So here I forgot to give $con. Okay, product result इधर भी देना पड़ेगा. So इधर होगा insert into table name क्या है, orders. Okay, table name is orders. ना इधर मैं मेंशन करूंगा जो जो कॉलम मुझे इंसर्ट करना है, बिकॉज आईडी कॉलम मुझे स्किप करना है ना, दैट्स वाई. सो आई विल मेंशन एड्रेस. सो हियर डोंट पुट कोटेशंस. कस्टमर फुल नेम, मोबाइल, then you have grand total. Okay, then order date. So let me view word wrap, enable the word wrap so that it flows down. So these are the columns that I'll be inserting. Okay, I'm using the second syntax where insert into table name, इसके बाद columns को डालते हैं. Then we specify the values. So address कहाँ से आ रहा है, dollar address, and this is a string, so I must specify inside single quotes. And remember बाहर में double quotes होना पड़ेगा, otherwise ये variable का value replace नहीं होगा. Okay, so थोड़ा ये हो गया actually. Vipul is also not there. So I'll provide the video क्लास जो हुआ है, मतलब ऑर्डर प्लेस का हम लोग ने किया है, यू विल गेट द वीडियो. सो ऑलमोस्ट वी आर डन एक्चुअली. सो या यू विल गेट द वीडियो, डोंट वरी. Are you recording? या नो, एक्चुअली आई वाज डूइंग द क्लास विद हृदय, बट since most of Acha. them were not there, I was recording, so this video I'll send after the class itself. Acha. तो Actually, I had no current, so I could not join even if I wanted to. oh, okay, okay. So without current, there is no Wi-Fi. So that's why. Oh, okay, no problem. Tomorrow also we'll have class. Just today is short class actually. Order place logic. So, as a short overview, Raja, we should maybe do class a little earlier, you know. yeah, it's late Like actually. It's late. around 8:30. this time, my father starts to say कि इतना late को क्यों class करता है, because I have to go for walk and all. हाँ And after we complete the class at 11 or something like that, or 10:30 or something like that, हाँ, I have ज़्यादा to लेट go हो for जाएगा. work and मैं घर आते आते 12 बज जाता है. अच्छा, So 10 वो बजे एक तुम्हें problem निकलना है पड़ता है जिससे. ना, हाँ bro. मतलब 10 बजे निकलना पड़ता हाँ है. ये अच्छा तो अच्छा, tomorrow 8:30 मुझे फिर 10 में. बजे हाँ, जाना पड़ेगा मॉम को छोड़ने. 8:30 में करने से होगा नहीं तो ना. हाँ ये 30 करने से भी होगा, करते करते 10 बज जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं हाँ हाँ होगा. हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके. Also Baraja, there's one thing, हाँ. like, so recent today Bipul का through से हम्म. Bipul got one guy who was asking for web developer. So Bipul referred him to me. So he called me today saying कि हाँ. like he wanted someone to do backend and something like that, या. front end backend full stack. हाँ हाँ. So Bipul was saying कि so like What कैसे website बोलूँ it will अभी. depend now. हाँ इट्स ही वाज सेइंग कि लाइव होगा, मतलब लाइव वेबसाइट बनाना पड़ेगा. हाँ, मतलब किस तरह का गांचमा. वेबसाइट. हाँ
किस तरह का जो वेबसाइट होगा वो? क्लाइंट बेस्ड होगा, हम्म ऐसा कुछ बोल रहा था वो। हम्म हम्म, हम्म, सो माय इशू हियर इज पीपल बोल रहा था कि फ्री में मत कर। हाँ लाइक ही वाज फर्स्ट सेइंग कि 15 डेज, पहले बोला था 30 डेज 1 मंथ आपको फ्री, वो फ्री पेड नहीं होगा, वो फ्री होगा। ठीक है, वेयर अच्छा ही वुड लाइक एक्चुअली यू कैन से समथिंग ट्रेनिंग वगैरह देगा बोल रहा था। बिल्कुल वाज सेइंग कि ऐसे फ्री में मत कर। हाँ, मतलब वो इंसान फ्री में और चाहता फिर था। हाँ वो बोला था फ्री में वो करने के लिए। सो बिल्कुल बोला कि अगर तू वर्क टाइम करेगा तो उसका पैसा हमें से देना है, क्योंकि लोग मतलब हाँ यूज करके चले जाते हैं ना, हाँ, कि तो पहले तो पहले टाइम फ्री का देगा बहुत वैल्यू तुमको रहता है। टाइम। हाँ तो वही बोल के लाइक ही वाज सेइंग। तो फिर बाद में जब उसको बोला कि मैंने हम्म कि देखो, मैं अगर आपके लिए 4 आवर्स भी, मतलब वो पहले बोला था कि फ्री करो 1 महीना, हम्म उसके बाद 1 महीना फ्री करने के बाद तुमको आइडिया हो जाएगा कि क्लाइंट को क्या चाहिए। तो उसके बाद फिर हम्म 3 मंथ्स ऐसा तुम पार्ट टाइम करो 4 आवर्स अ डे, हम्म। और उसके बाद फिर हो सके तो फुल टाइम जाएंगे। तो बिपिन को बाद में जब मैंने बोला तो उसने बोला ऐसा मत बोलना, तो पैसा मांगना। फिर बाद में जब मैंने उसको पैसा का बात बोला, हम्म। तो ही इज लाइक काइंड ऑफ हेजिटेटिंग कि ऐसा है तो आप वो क्या इंटर्नशिप करने का जरूरत नहीं है आपको। अब जब भी हमारे हमारे पास कोई वो क्लाइंट का आएगा तो हम आपको रीच करेंगे, ऐसा करके बोल रहा था। ओ, व्हाट डू यू थिंक, शुड आई लाइक आई शुड नॉट वर्क फॉर फ्री, बिकॉज मैं जितना ऑलरेडी तुमने सर्च किया सीखा था क्या? हूँ। तुमने सर्च हाँ, किया था जॉब एक्स को? नहीं 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 नहीं, ये विपुल को आया था। अच्छा अच्छा, विपुल वाज विपुल। वर्किंग अच्छा, ऑलरेडी, इज रियली सजेशन। बिजी। सो अभी हाँ लाइक वो आते आते उसका 7:30 ऐसा बज जाता है घर में आते आते। हाँ। और फिर उसके बाद उसका अलग से एक और क्लासेस होता है और हम लोग का क्लासेस होता है। तो ओ, उसको वो टाइम ही नहीं मिलेगा वो करने का। तो उसने बोला कि मेरे से नहीं होगा, आप उससे रीच कीजिए। और वो पहले भी वो ऐसा कर चुका है उसके साथ हाँ एक हाँ बार। हाँ। फ्री तो उसको इतना वो ये तो मत रेस्पॉन्सिव नहीं करो लगा। एक्चुअली फ्री में, बिकॉज तुम हाँ। एक्चुअली रेडी भी नहीं हो, तुम्हारा बहुत सीखने का है मतलब। नहीं, बट उसको वेनिला चाहिए था बस। वेनिला पीएचपी भी चलेगा उसको। हाँ इसलिए मैंने मतलब लेने का सोचा भी। नहीं, कुछ तो एक्चुअली तुम्हें लगेगा, नहीं तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा तुम्हारे लिए मतलब। वो हाँ प्रोजेक्ट थोड़ा ये हो जाएगा मतलब। हाँ, और वो लोग इतना काम कुछ लाइक हाँ 15 डेज भी अगर मैं 4 आवर्स करके काम करता हूँ तो लाइक 60-70 आवर्स हो जाएगा 15 डेज वो में। अननेसेसरी है। हम लोग का स्टडी में इन्वेस्ट कर लो, बहुत काम में आएगा। बिकॉज हाँ, इनफैक्ट हम लोग भी जो क्लास कर रहा है हाँ, वो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। डमी हो या लाइव हो, कोडिंग तो करना ही पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। और मैंने वो रियल लाइफ थोड़ा पकड़ के ही दिया था प्रोजेक्ट्स भी। हाँ, हम लोग जैसे हमारा प्रोजेक्ट्स करते प्रोजेक्ट हैं। भी वो बोल रहा था कि तुमने कभी लाइव नहीं किया तो तुमको आइडिया नहीं होगा। मैंने उसको डायरेक्ट ऐसा बोला नहीं है, हम ऐसा लोग का नहीं है। प्रोजेक्ट जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इंटरमीडिएट लेवल वाला प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यस डेफिनेटली, उसमें रियल वर्ल्ड तो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होगा। हाँ, रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। और अगर मैं कोड करने के लिए बैठता हूँ तो मैं फ्री में अगर आपको कोड करके दूंगा तो हाँ फिर लाइक मेरे को भी वो चाहिए होगा ना। अगर मैं आपके लिए 4 घंटा रोज बैठ के अगर कोड कर रहा हूँ तो हाँ, मेरे को कॉम्पनसेशन जरूरी होगा। कम डेफिनेटली। टाइम सबका वो वैल्यूबल होता है ना तुम्हारा वो। हम्म, और इसलिए तो वैल्यू को मतलब ऐसा डिक्रीज मत करना। ये स्टडी में हाँ ही लगा दो, और मतलब जो जो प्रोजेक्ट्स दिया है उसी से ही बहुत तुमने सीखने को मिलेगा। हाँ, मिल ही रहा है एक्चुअली वो। अभी हम लोग हाँ, फ्रेमवर्क इतना टच किया भी नहीं है दोनों क्या साइड नहीं का। है। हाँ, एक एक मतलब क्लियर करके जाना पड़ेगा, दिस वाई। हम्म, और मतलब मैंने जितना 3 साल में काम किया उसके बेसिस में ऐसा मतलब वो दिया है सोच के। सो मतलब हाँ, सो जो 3 प्रोजेक्ट्स है उसी को मतलब केयरफुली करने से बहुत ये मिलेगा, हाँ, उसी के आइडियाज रिलेटेड मिलेगा। में हाँ ज्यादातर होता है डेफिनेटली, ना। और वो रियल वर्ल्ड ही है वो एक्चुअली। जैसे सोशल मीडिया बोलने जैसे कमेंट, क्रिएटिंग पोस्ट, डिलीटिंग पोस्ट, वो सब होता रहता है। हाँ तो वो एक्चुअली मत करो, हो सके तो अवॉइड करना। नहीं तो बाद में तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन होगा, मतलब जब लोगे ना मतलब छोड़ नहीं पाओगे एग्री हाँ, एग्री वही करने वो से। बोल रहा था वो। टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा तुम्हें वो हाँ, बहुत। इन्वॉल्व हो जाने से नहीं होगा। हाँ, और ऊपर से कुछ मिलेगा भी नहीं है मतलब। हाँ,
तो अगर पे भी कर रहा है तो एक समझ में आता है कि हाँ हाँ चलो एटलीस्ट वो हाँ पे कर रहा है, कर सकता है, हाँ टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ। हम लोग को जॉब में पेमेंट मिलता है, पेमेंट मिलने के बाद भी थोड़ा ऐसा आता है कि इतना काम कर हाँ मतलब। कि इतना काम हाँ, करे। इवन पेमेंट नहीं, द में भी ओनली ऐसा लगता रीजन है। मैंने, हाँ हाँ द ओनली रीजन मैंने लेने का सोचा है कि लाइक वो 4 आवर्स a डे का था। तो फोर हाँ आवर्स a day I can invest if you are paying me well, then 4 hours a day is not a big deal। हाँ मैं थोड़ा सा हेक्टिक लेके कर सकता हूँ, फिर हाँ मेरा दूसरा चीज़ें भी रहता है, प्रोजेक्ट भी हाँ करने को हाँ। रहता है, क्लासेस भी हम्म करने को रहता है, राइट। हम्म। बिना पेमेंट का वो, और वो मत करो। तेरा जो भाई 12 आवर्स 13 आवर्स ऐसा होता है। हाँ वही तो। अब तो तो स्किप कर उसमें दो, कोई अगर पेमेंट देगा ओनली देन एज एन इंटर्नशिप कर सकते हो। हम्म, मतलब नहीं तो बस ये अपना प्रोजेक्ट सिर्फ मतलब फोकस करो। हम्म, और वैसे भी रेडी भी नहीं हो, बिकॉज यू शुड एक्चुअली लर्न नाउ, हाँ इट्स लर्निंग टाइम, इंटर्नशिप का टाइम नहीं है एक्चुअली। हाँ हाँ। हाँ, लाइक दैट। तो मैंने तो वही बोला था, पर क्या बोलता है, हम्म, ऑल्दो मतलब एक साइड से अगर कुछ इनकम का होता है तो करने से बेटर है। करने से साथ में बेहतर वो है। अब प्लस अगर पार्ट टाइम हुआ तो ऑब्वियसली मेरे को लगा हाँ। पार्ट टाइम होने से चलेगा, क्योंकि हम्म। 4 5 hours इज नॉट हम्म मच। हम्म। डेफिनेटली मिलेगा पार्ट टाइम जब तुम मतलब थोड़ा उस लेवल में आ जाओगे। तो दैट्स वाई मतलब प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट्स मतलब जितना जल्दी खत्म होगा उतना ही मतलब ये दे पाएंगे हम लोग। और वेनिला पीएचपी तो ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है। हाँ, ये 3 प्रोजेक्ट्स जस्ट मतलब वेनिला। क्लियर होने के लिए। हाँ, दिस इज वनीला पीएचपी। इसके बाद हम लोग को नोड जेएस में जाना पड़ेगा सो दैट वी अंडरस्टैंड एपीआई कॉन्सेप्ट्स। एपीआई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो नोड जेएस में करना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम लोग ऐसा मतलब फ्रेमवर्क्स में आएंगे। ठीक है, सर लेवल वो सब जब कंफर्टेबल हो नोट जाओगे। नोट जेएस फ्रेमवर्क नहीं है क्या? नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, एक्सप्रेस जेएस बोलते हैं हम लोग। अच्छा एक्सप्रेस जेएस यूज़ करके बनाते हैं एक्चुअली। सो अच्छा। एक्सप्रेस ही यूज़ करेंगे नेक्स्ट मंथ, नोड एंड एक्सप्रेस लाइक दैट। ओके। फिर हम लोग का बाद में फ्रंट एंड वो सब रहेगा, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स लाइक दैट। तो ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए मतलब हाँ स्किप कर सकते हो तुम, बाद में देख लेना अपना टाइम मिलने से। देन टुमारो हम लोग ओके, एट तो थर्टी फिर में भी ले लेंगे। विदेश चला गया था, हाँ हाँ, ओके। हृदय हृदय तो चला गया, उसका भी शायद प्रॉब्लम है इंटरनेट का। हाँ विदेश थोड़ा सा आजकल इनएक्टिव टाइप का है, पता नहीं। इनएक्टिव हो गया हाँ। स्टिल ओके, कितना तक बनाया और तो मैंने अभी देखा तो वो राइट साइड में कुछ और यस। भी था। तो बेसिकली राइट साइड में हम लोग ने एक फॉर्म बनाया। इसमें क्या होना चाहिए, मैंने एक नया टेबल बनाया, ऑर्डर्स टेबल। तो क्या होगा, जब ये कार्ड में ऐड किया हम लोग को ऑर्डर प्लेस करना रहता है। तो ऑर्डर प्लेस हम्म, करने से ही पता चलता है ऑनर को कि हाँ ये ऑर्डर अच्छा मुझे हाँ। भेजना है। ई कॉमर्स का लास्ट चीज़ ऑर्डर प्लेस का ही होता है। तो इसमें हम लोग का ऐसा फॉर्म मैंने डाल दिया, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, वो फिलअप करके प्लेस ऑर्डर दबाएगा। तो क्या होगा, इस टेबल में इंसर्ट होगा, ऑर्डर्स टेबल। तो इसमें देखो, इसमें एड्रेस तो डायरेक्टली इंसर्ट होगा, मोबाइल फुल नेम, बट इसमें ग्रैंड टोटल भी है। ग्रैंड टोटल को कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा। तो ये कार्ड में जितना भी है आइटम, उसको प्लस करके इसमें ऑटोमेटिक इंसर्ट होना पड़ेगा ग्रैंड टोटल में। और ऑर्डर डेट बोल के है कॉलम, इसमें कौन सा डेट में ऑर्डर दिया था उसको भी स्टोर करना पड़ेगा, बिकॉज डेट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट में वो ऑर्डर प्लेस में वो सब ख्याल रखना पड़ता है। तो इधर से हम लोग फॉर्म को मतलब कॉलम में डिवाइड किया। कॉलम डी ये है, कॉलम डी 8, ये है कॉलम डी 4 बूटस्ट्रैप का। सो ऑन द राइट साइड दिस पार्ट इज शोइंग। तो राइट साइड कॉलम डी 4 में हम लोग ने ये कॉलम्स बनाया। ठीक है, इनपुट टाइप लाइक दिस, फुल नेम, मोबाइल, एड्रेस, उसको नेम एट्रीब्यूट दिया। फिर अगर हाँ, 12 बिट यूज कर रहे हैं ना बराजा, कौन सा? 12 बिट सिस्टम यूज हो रहा है, राइट। हाँ हाँ यस, div क्लास रो, देन कॉलम डी 4 8 कॉलम डी 4 राइट साइड में। तो सीरियसली आई वाज ये कॉलम भी कैसे याद है, ओ कॉल एमबी। ओके। एम डी हाँ, मीडियम स्क्रीन डिवाइसेस मतलब। हाँ मीडियम स्क्रीन हाँ, डिवाइस। ये ऑटोमेटिक बहुत रेस्पॉन्सिव दिन होता बाद है। सुना है। हाँ, मतलब जब मैं मोबाइल में देखूंगा तो ऑटोमेटिक 12 लेगा, बट मीडियम स्क्रीन साइज हम्म, से ये लेगा साइज को। सो इफ आई डू मोबाइल यू कैन सी ऑलरेडी, इसको साइज को मैं बड़ा करता हूँ। नीचे चला जा रहा हाँ, तो ये नीचे ऑटोमेटिक चला जाता है, लेकिन डेस्कटॉप में देखने से वो ऑटोमेटिक राइट साइड में चला जाता है लाइक दिस। है। हाँ सो दिस इज मतलब ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव होता है वो उस स्टेप का। तो उसमें फॉर्म है, नेम एट्रीब्यूट, फुल नेम, मोबाइल, एड्रेस,
फॉर्म एक्शन प्लेस ऑर्डर डॉट PHP। तो इस फाइल में आएगा जब हम लोग प्लेस ऑर्डर बटन दबाएंगे। इसके बाद मैंने क्या किया, ये तीनों डिटेल्स एक्सेप्ट किया। फिर हम लोग ने कार्ट में जितना भी डिटेल्स है उसको फेच किया, बिकॉज हम लोग को ग्रैंड टोटल का कैलकुलेशन करना है कि वो ऑर्डर जो है उसमें ग्रैंड टोटल कितना होगा, उसको प्लस करना पड़ेगा ना सभी आइटम्स को। सो दैट्स वाई आई सिलेक्टेड ऑल द आइटम्स फ्रॉम कार्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ट। फिर मैंने एक वेरिएबल भी बनाया, ग्रैंड टोटल इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें मैं स्टोर करूँगा ग्रैंड टोटल को, प्लस प्लस करके स्टोर करके जाऊँगा। सो मैंने व्हाइल लूप स्टार्ट किया। व्हाइल लूप माइस्कुलर फेचेस ऑफ डॉलर रिजल्ट, मतलब कार्ट में जितना भी आइटम है उतने बार व्हाइल लूप चलेगा। इफ़ कार्ट हैज़ 5 आइटम्स तो व्हाइल लूप 5 टाइम्स चलेगा, लाइक अनटिल रो ख़त्म नहीं होता है, नल नहीं आने तक। ठीक है, सो ये लूप में डॉलर रो में वो पार्टिकुलर रो रहेगा कार्ट आइटम का। फॉर द फर्स्ट रन फर्स्ट रो रहेगा, देन सेकेंड रो, लाइक दिस। तो इसमें हम लोग ने क्वांटिटी और प्रोडक्ट आईडी कॉलम को रीड किया है। देखो, क्वांटिटी कॉलम एंड प्रोडक्ट आईडी कॉलम, एज यू नो इन दिस कार्ट टेबल क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट आईडी कॉलम रहता है। ठीक है, तो क्वांटिटी को मैंने वेरिएबल में स्टोर किया, सिमिलरली प्रोडक्ट आईडी को भी PID बोल के स्टोर किया। अभी क्या हो रहा है, वी नीड टू फाइंड अ ग्रैंड टोटल, बट स्टिल इधर प्राइस नहीं है। ओके, इधर हम लोग का बस प्रोडक्ट आईडी है। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू फेच द प्रोडक्ट डिटेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल, बिकॉज प्रोडक्ट का प्राइस कहाँ पे है, प्रोडक्ट टेबल में है। ओके, प्रोडक्ट का प्राइस प्रोडक्ट टेबल में है, कार्ट टेबल में नहीं है। तो कार्ट टेबल में क्या है, हम लोग का बस प्रोडक्ट आईडी है। सो यूजिंग दिस प्रोडक्ट आईडी we have to again run one SQL query, select query, to fetch the product details. So select start from products where ID equals to PID. Okay, मतलब ये कार्ट का जो लूप चल रहा है ना उसके अंदर और एक SQL क्वेरी रन किया हम लोग ने प्रोडक्ट को फेच करने के लिए, where ID तो equals to प्रोडक्ट PID। रिजल्ट के अंदर में सब मतलब प्रोडक्ट का पूरा डिटेल है, जितना भी वो हाँ, वाइल के अंदर रन होके वो प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट में जाके वो जा रहा है सारा डिटेल। नहीं, एक प्रोडक्ट का डिटेल है, सारा प्रोडक्ट नहीं, एक प्रोडक्ट का। देखो व्हाइल लूप जब चलेगा फॉर द फर्स्ट टाइम उसमें ये पहला रो रहेगा। ओके, ID 12, प्रोडक्ट ID 1, क्वांटिटी 2, तो वो सब डिटेल्स रहेगा। क्वांटिटी 2, प्रोडक्ट ID 1, ठीक है, वो सब डिटेल्स रहेगा। तो प्रोडक्ट आईडी में समझ लो 1 है पहला रन होने में। ठीक है, तो माइस्कुलर फेच स्ट्रोक इसमें क्या रन होगा, माइस्कुलर क्वेरी में सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर ID इक्वल्स टू 1, ऐसा होगा बिहाइंड द सीन्स। ओके, तो बस उसी प्रोडक्ट को मिलेगा जिसका ID है 1। तो प्रोडक्ट टेबल में देखते हैं इसमें कौन सा प्रोडक्ट का ID है 1, ये वाला एसर एस्पायर, like this. So basically we are fetching that related product of that cart using the ID. ठीक है, तो since this is only one result we are not running any while loop again, तो इसको मैं बस एक ही बार कॉल कर दूंगा MySQL fetches हो प्रोडक्ट रिजल्ट। मैंने अलग नाम दिया सो दैट कुछ इश्यूज ना आए, पुराना वेरिएबल रिप्लेस ना हो जाए, दैट्स व्हाई आई गिव डिफरेंट वेरिएबल नेम। तो इसका रिजल्ट को मैंने प्रोडक्ट डिटेल्स बोल के स्टोर किया। सो दिस तो वन मतलब हर एक प्रोडक्ट आईडी के लिए एक एक बार वो एक रन एक होगा बार वो रन होगा, वाइल हर लूप। बार कार्ट में 5 आइटम है तो वो ये लूप में 5 बार रन होगा। एवरी टाइम वो डिटेल फेच करने के लिए हम लोग को रन करना पड़ेगा। कौन सा डिटेल, ये प्राइस वाला। तो प्रोडक्ट डिटेल से अभी अच्छा, हम लोग प्राइस को ले सकते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन रो नाउ। मतलब वो प्रोडक्ट डिटेल के अंदर में, हाँ हाँ, प्रोडक्ट रिजल्ट से प्रोडक्ट डिटेल के अंदर में पूरा आ गया है, पूरा प्रोडक्ट का एक पूरा आ प्रोडक्ट गया आ है, गया। हम लोग हाँ, बस प्राइस को पकड़ रहे हैं। हम लोग को बस प्राइस को चाहिए, जस्ट ग्रैंड टोटल कैलकुलेशन के लिए ये इतना सारा मतलब करना पड़ा। ग्रैंड टोटल को देखो, ओके। अभी इक्वल्स टू 0, स्टार्टिंग में मैंने 0 रखा था। ओके, हाँ, देन इक्वल्स टू ग्रैंड टोटल प्लस ये प्राइस। तो ये लूप में जब चलता रहेगा मतलब तो 0 = 0 प्लस जो है, ओके। 0 प्लस ये, हाँ करेक्ट। सो 0 प्लस ये 39,000, अगर नेक्स्ट आइटम है तो ये इसमें अभी 39,000 प्लस नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा 39,000 प्लस तो 8,500। बारजा, हाँ, तो अभी वहाँ पे तो एसर का जो था वो तो 2 है, राइट? यस, अभी तो क्वांटिटी इसमें 2 है, तो अभी हाँ, इसमें क्वांटिटी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइक दिस, मल्टीप्लाइड बाय अभी क्वांटिटी ये जो मैंने वेरिएबल में ऊपर रखा था दिस विल सिंपली हाँ, मल्टीप्लाई लाइक दिस। तो अभी करेक्ट हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा किसी किसी में, किसी किसी में अगर 2 या 3 हाँ, है तो ये मल्टीप्लाई होके प्लस होगा। ओके। और इसमें तुम्हारा बॉडमास फार्मूला अप्लाई होगा, मतलब ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन हाँ, लाइक दैट, डिवीजन। तो डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन पहले होता है। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है तो ऐसा पैरेंथेसिस में डाल सकते हो ऑलवेज।
ब्रैकेट हमेशा डाल सकते हो, जैसे मैथमेटिक्स में जितना चाहो ब्रैकेट्स डाल सकते हो, लाइक दिस पैरेंथेसिस। इसमें भी अगर तुम्हें पहले समझ लो प्लस करना है आगे, तो ऐसा ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। तो पहले प्लस तो होगा, only then multiply होगा। Sometimes this is also useful, so you can override the default behavior. But if you have some confusion, then you can always wrap them inside parentheses. But even if you don't give, it will still multiply first using the Bodmer's formula. हाँ, वो पैरेंथेसिस Parentheses, यूज नहीं हाँ। करने से कॉल Parentheses यूज आया नहीं वो करने से तो। वो मैथमेटिक्स का डिफॉल्ट हाँ, बीओडी, बदमाश रूल फॉलो करेगा। हाँ, डिवीजन, बट अगर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। हाँ, तो अपने हिसाब से भी कर सकते हो लेकिन हम लोग। लेकिन पेरेंथेसिस देने से हाँ अपने हिसाब से होगा, बिकॉज ब्रैकेट जो है ना, बी का मतलब ब्रैकेट है, तो मैथमेटिक्स में ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको। तो ब्रैकेट का पहले हाँ, होता है, मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऐसा, दैट्स व्हाई ब्रैकेट देने से उसका पहले होता है। तो ग्रैंड टोटल में ऐसा मतलब लूप होके पूरा ऐड होके रहेगा। अभी इसका एक और शॉर्टकट बल्कि वो है। क्वांटिटी में तुमने तुमने वन दिया था ना, डिफॉल्ट वन रहता है। नहीं, इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, देखो ये नहीं, स्टोर होगा। अभी तो चेंज है ना, बट मैं हाँ, उसका बोल रहा हूँ, पीएचपी कोड का बोल रहा हूँ। देखिए देखो पीएचपी कोड में ये कार्ड टेबल में जो भी है उधर से आएगा। इफ़ यू सी द कार्ड टेबल, हाँ, इस इधर से हम लोग रीड कर रहे हैं, क्यू टी वाई कॉलम, हाँ। ये हम लोग का कॉलम है, देखो डॉलर रो क्यू टी वाई। अच्छा वो तब, अच्छा दो माइस्क्ल दिया एफ था एच, उसमें, वो दो दिखा रहा है उसको। हाँ। तो बेसिकली इसमें हम लोग का जो इंसर्ट किया गया था, बेस्ड ऑन डेट उधर से वैल्यू आएगा, एंड ग्रैंड टोटल ऐसा कैलकुलेट होना पड़ेगा, लाइक दिस। तो लूप में होता है, तो कार्ट में जितना भी आइटम है क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके लूप में हम लोग ऐसा ऐड करते हैं। अब इसका एक शॉर्टकट है, प्लस इक्वल लिख सकते हो, हाँ, दिस इज द शॉर्टकट, ग्रैंड टोटल प्लस हाँ, इक्वल्स टू दिस वन, दिस इज शॉर्ट हैंड नोटेशन। अभी हम लोग का ये हो गया फुल नेम, मोबाइल एड्रेस, ग्रैंड टोटल। अभी लास्ट एक चीज़ है डेट। इफ़ यू चेक द ऑर्डर टेबल, हम लोग को और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो है ऑर्डर डेट। तो ये ऑर्डर डेट जो कॉलम है, उसके लिए हम लोग ने ये डेट फंक्शन यूज़ किया है। हाँ, पीएचपी में ये जो डेट फॉर्मेट अगर तुम्हें बनाना है, तो ये डेट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। ओके, दिस विल कम लेटर, बट डेट फंक्शन ऐसा लिखो, डेट देन बिटवीन पैरेंथेसिस फॉर्मेट पास करना पड़ता है, कौन सा फॉर्मेट का डेट चाहिए, लाइक दिस। तो बेसिकली इफ़ यू वांट दिस फॉर्मेट वी हैव टू राइट कैपिटल वाई एम एंड डी। जब मैं ये लिखूंगा ना, व्हाट आई विल गेट, आज का जो डेट है, आज का करंट डेट उसको मिल जाएगा 2023 हाइफन 08, लाइक दिस, हाँ, हाइफन वो खुद 21। से होता है ना। यस, तो रिप्लेस हो जाएगा जब ये कोड रन होगा। तो ये चीज़ जो है हम लोग को करंट डेट देगा। व्हेन दिस कोड विल रन, इट विल गिव अस द करंट डेट विच वी कैन स्टोर इन वेरिएबल, बिकॉज इधर मुझे इंसर्ट करना है। इफ़ यू चेक दिस स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, तो ग्रैंड टोटल इंटीजर है, लेकिन ऑर्डर डेट बोल के जो कॉलम है उसका डेटा टाइप है डेट। तो उसमें एसक्यूएल में हम लोग को ऐसा फॉर्मेट में देना पड़ता है। तो वो डेट को जेनरेट करने के लिए यूज़र तो नहीं डालेगा इसमें, इस केस में। इस केस में हम लोग मतलब ऑटोमेटिक जब ऑर्डर प्लेस होगा, डेट को ऑटोमेटिक हम लोग को पकड़ के डालना है। अभी इसमें मैंने वो सेकंड सिंटेक्स यूज़ किया जहाँ पे मैंने कॉलम नाम को स्पेसिफाई किया आफ्टर द टेबल नेम, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स। सो आई स्पेसिफाइड द कॉलम नेम्स लाइक दिस, बिकॉज मेरा एक आईडी बोल के कॉलम है। सो आई वांट द आईडी कॉलम, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, सो आई वांट इट टू इंसर्ट ऑटोमेटिकली, दैट्स वाई फुल नेम, फुल नेम वेरिएबल से आएगा, मोबाइल डॉलर मोबाइल, सिंगल कोट्स के अंदर रहेगा, ग्रैंड टोटल डॉलर ग्रैंड टोटल। अच्छा, इसमें कोटेशन नहीं चाहिए बिकॉज ग्रैंड टोटल इज एन इंटीजर। जो जो स्ट्रिंग है ओनली उन लोग को सिंगल कोट के अंदर डालना है। अभी डेट भी एक इस स्ट्रिंग जैसा काम करता है, तो उसको भी हम लोग को सिंगल कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा। तो विद दिस वी विल रीडायरेक्ट बैक टू होम पेज। सो हेडर ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली बोल ये के डॉलर एड्रेस, डॉलर फुल नेम, डॉलर मोबाइल और डॉलर डेट, हाँ, ये लोग स्ट्रिंग के, ये लोग ओके। स्ट्रिंग को हम लोग ऐसा लिखते हैं, तो बिटवीन सिंगल कोट्स हम लोग को डालना पड़ता है। व्हेनेवर यू राइट एनी एसक्यूएल कोड, सिंगल कोट्स के अंदर डालना पड़ता है। मतलब ये फुल नेम मोबाइल आ कहाँ से रहा है? ये फॉर्म से आ रहा है ना, डॉलर पोस्ट, व्हेन वी अच्छा, सबमिट द ऊपर में फॉर्म, दिया हाँ, था। फॉर्म में हम लोग का नेम एट्रीब्यूट है, तो उधर से आता है। मतलब एसक्यूएल का जो कमांड फॉर्म होगा ना, उसमें सिंगल कोड लगेगा। हाँ, एसक्यूएल का अच्छा जो अच्छा। कोड रन होगा रिप्लेस होके वेरिएबल का वैल्यू। हाँ, ये एस, अच्छा ये एसक्यूएल का वो से वेरिएबल बना है ना, ओके।
हाँ, ये एसक्यूएल का क्वेरी बन रहा है इधर डबल कोट्स के अंदर। तो ये जो एसक्यूएल का कमांड बन रहा है इसमें डबल सिंगल कोट लगेगा। अभी चार्ज तो मेरा पूरा खत्म हो गया एक्चुअली 1% ही है। वो मैंने भी देखा कस्टमर। बोल के एक सुंदर सा पेज डिजाइन करके रख सकते हो, तो उधर रिडायरेक्ट कर देना। मैंने होम पेज में रिडायरेक्ट किया। अभी देखो ग्रैंड टोटल अभी आ गया भाई साहब, वो 70,000। वीडियो देने से पहले ना हम लोग का